जाइए। What a game by Punjab Kings. Two important points for Punjab Kings, and they're still in the tournament. Brilliant bowling performance on a flat wicket. Debashish, आज बहुत ज़रूरी था पंजाब किंग्स के लिए जीतना अगर प्लेऑफ की रेस में रहना है। और जिस तरह से आज परफॉर्मेंस किया, लिविंगस्टन ने जो बैटिंग किया, अभी भी लाइव हैं पंजाब किंग्स इस टूर्नामेंट में। जी बिल्कुल, not only Livingston, we should also remember the innings that Bairstow played at the start. Uh, so I think it was a comprehensive win. They not only batted well, they also bowled out the opposition, or it was a complete team led by their captain. हालांकि मयंक ने उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं करा, but he just changed the bowling to perfection and it was a completely convincing win. बिल्कुल सही कहा आपने कि मयंक अग्रवाल ने कुछ खासा बैट से नहीं किया, हालाँकि 19 क्रूशियल रन थे वो उस टाइम पे, क्योंकि कंट्रीब्यूट आपने किया, बड़ा नहीं कर पाए, अपने आप को डिमोट किया मयंक ने। परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी, फॉर्म नहीं आ रही थी, तो समझा कि बेयरस्टो की इंपॉर्टेंस ऊपर है और बेयरस्टो का वो मूव अब काम भी आ रहा है। आप शुरू से ही कह रहे थे कि बेयरस्टो अगर हैं तो उनको ओपनिंग कराएँ और अब वो लगातार अच्छा परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं। धवन कुछ खासा कर नहीं पाए, लेकिन नीचे लिविंगस्टोन ने एक कमाल की वो इनिंग खेली, गेम चेंजिंग वो इनिंग थी। और उसके बाद मयंक ने बैट से कुछ खासा नहीं किया, लेकिन कैप्टेंसी उनकी स्पॉट ऑन थी। जी बिल्कुल, कैप्टन से उनके स्पॉट ऑन। आज आज मैं कहना चाहेंगे कि जिस तरह से हरप्रीत ब्रार, अर्शदीप सिंह इट्स हैज बीन अ रेवलेशन राइट थ्रू आउट दिस आईपीएल, और जिस तरह से आज उसने विकेट लिया हर एक इंटरव्यू, और एंड खास बात यह है कि द पंजाब bowlers they kept on picking the wickets and that did not help the world of good, क्योंकि आरसीबी का जो रनचेस में शुरू से ही विकेट चला जा रहा था, एंड अगेन विराट कोहली, इट्स बिकमिंग रियली डिसअपॉइंटिंग फॉर द फैंस। आज भी लेग साइड पे मतलब ही इज टोटली गॉन आउट, मींस क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है, क्योंकि ही लुक्ड एट द स्काईज, व्हाट सीन murmuring at himself, बैट फ्रस्ट्रेशन में बैट को वो बैंक किया, तो नथिंग इज गोइंग राइट फॉर द फॉर्मर आरसीबी कैप्टन रीमा जी। इट हैपेंस, अगर थोड़ा बैट फेस लंबा हो जाता है तो इट हैपेंस, बट जल्दी ठीक हो जाएगा। आज थोड़ा अच्छे टच में नजर आया। लेट एंट्री ली है जॉयदीप ने, लेकिन आ गए हैं। वेलकम बैक जॉयदीप। और क्या व्यूज है आपके इस गेम के बारे में? पंजाब ने आउटप्लेड किया आरसीबी को तीनों ही डिपार्टमेंट में आज। जी, एक बार 200 के ऊपर रन हो गया तो इट्स ऑब्वियसली वेरी डिफिकल्ट, सो यू नो इट्स एन अपहिल टास्क इन द फर्स्ट प्लेस. See, that's the reason why we were all along saying that Johnny Bairstow has to open. And a lot of times he's asking, what's the difference between open and number 3? Because Mayank Agarwal is getting out quite early. But it's a mental thing. Openers are always openers. Openers think like openers. Openers be like openers. So if you take from that point of view, I think it's just this question of belonging that I asked once, I once asked an opener, what is it about opening? He said, we love putting that spike on that soil for the first time, where we take the leg stump guard for the first time. So simple things like that. And I'm surprised it took them so long, because he's had so much of success for England, for Hyderabad at the top of the order. And it took them so long, 11 games, 10 games. You know, normally after 4-5 games, you try and facilitate him, because between Johnny Bairstow and Mayank Agarwal, Johnny Bairstow is the better T20 player. Mayank Agarwal could be the captain, and when you look at the team, you always look at the player. You don't look at who's the captain. It doesn't matter. And Mayank Agarwal should have been told by someone that you will have to bat 3 for the sake of the team. Sunil Narayan, when he started opening, Gautam Gambhir used to sometimes bat 3 because we were taking a punt with him. So that is possible that, because Brendan McCullum was there, Gautam Gambhir would go 3. No problem for the team, as good as Gautam was. And here, Mayank has been struggling. Mayank is no KL Rahul. So Mayank should have in the beginning played 3 and given Johnny Bairstow. I think Punjab would have been a lot better placed today than they are if he was opening from game 1. Yeah, Agreed. I firmly believe Absolutely. so. लेकिन अच्छी बात क्या थी कि उन्होंने देर आए दुरुस्त आए, अपने आप को 3 पे भी नहीं, सीधा 5 पे ही कर दिया। देखा कि फॉर्म उनके पास नहीं थी। लेकिन जयदीप, आपके पास ही रहूंगी। कैप्टेंसी मैंने देवजी से पूछा था, आज कैप्टेंसी बहुत अच्छी हुई। सिर्फ 5 ही बॉलर्स ने बॉल डाली,
लिविंगस्टन थे, उनसे बॉल डलवाई नहीं क्योंकि ज़रूरत पड़ी नहीं, हमेशा गेम पे रहे। ऋषि धवन का वो 2 जो विकेट मिला था 1 ओवर में, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले मयंक अग्रवाल की कैप्टेंसी। युवा जी 200 रन कर देंगे ना तो कप्तानसी बहुत इजी हो जाता है. हाँ. Because the other team is not trying to win the game, they are trying to bat out of their skin. It's not easy because it's not often at this end of the tournament. It's not easy to chase 200, get close to 200s. We saw that in the beginning of the tournament. Now we are seeing the wickets a bit tiring and things are like that. So it's not easy. So I think his captaincy was made easier. His task was made easier by his batting unit by putting up a really formidable total. So obviously, when you go into field as a captain, you are breathing a lot easier than it was 165, 170. Those extra 30, 40 runs can really make you feel comfortable because कि अगर 20 बार मैच होगा तो 18-19 बार this total is good enough. And you just make sure that today is not that one day you lose the game. रन्स थे बोर्ड पे, कैप्टेंसी इजी हुई, लेकिन ब्रेबॉर्न में देखा गया है छोटी बाउंड्री से चेज होता है, बैटिंग ट्रैक था, लेकिन फ्लैट बैटिंग विकेट में जिस तरह से देबाशीष पंजाब के बॉलर्स ने बॉलिंग डाली, स्पेशली रबाडा एंड ऋषि धवन, अनसंग हीरो कह सकते हैं। ऋषि धवन का नाम बार बार लेते नहीं है, हम नाम लेते हैं कि भाई चलो अर्शदीप ने अच्छी बॉल डाली या रबाडा ने अच्छी बॉल डाली। रबाडा ने डेफिनेटली अच्छी बॉल डाली, जिस तरीके से विराट कोहली का आउट लिया था, विराट कोहली अच्छे निक में, आज लग रहा था कि वो फॉर्म वापस आने वाली है, लेकिन उसी टाइम उन्होंने विकेट ली। उसके बाद ऋषि धवन का वो ओवर जिसमें डबल विकेट मिला था, वहां पे वापसी की थी पंजाब किंग्स ने। जी बिल्कुल, उसी ओवर पे वापसी की थी पंजाब किंग्स ने क्योंकि राजत पटीदार वाज लुकिंग गुड, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे शॉट्स ले रहे थे और लोमरोर भी, माहिपाल लोमरोर भी, क्योंकि अचानक और एक चीज़ हम लोग को बोलना चाहिए कि अचानक दिनेश कार्तिक को क्या हुआ. दिनेश कार्तिक द फिनिशर इन रिसेंट मैचेस, लास्ट few matches he has not been finishing it for RCB if I'm not wrong, क्योंकि आज उम्मीद था उनसे. लास्ट मैच में उन्होंने 8 बॉल्स 30 रन किया था. बट देन आज उम्मीद था, बहुत उम्मीद था दिनेश कार्तिक से. तो क्योंकि देखिए आरसीबी 14 पॉइंट पे है, तो आज मैच जीतना चाहिए था टू गारंटी अ प्लेस इन द प्लेऑफ, क्योंकि पंजाब और दिल्ली दोनों ने 12 मैच खेला और 14 पॉइंट, और आरसीबी ने एक मैच ज्यादा खेला, 13 मैच पे 14 पॉइंट. तो अगर बिकॉज नाउ देयर विल बी कांस्टेंट प्रेशर ऑन आरसीबी, क्योंकि पीछे से 2 टीम चेस करेंगे, तो दैट शायद ये मैच स्पॉइल स्पॉट ना हो जाए उनके लिए, क्योंकि दे वुड हैव लव टू विन दिस मैच. क्योंकि देखिए पंजाब किंग्स से कई गुना बेहतर साइड है आरसीबी. हमने ये प्री शो में भी कल हम चार जो थे कल, सभी ने हम लोग एग्री किया था कि आरसीबी वुड बी द फेवरेट्स टू विन टुनाइट, बट ऐसे हुआ नहीं. तो शायद दिस लॉस माइट हर्ट देम बिग टाइम, क्योंकि देखिए ऐसे ना हो कि ये दिस माइट हॉन्ट देम, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि ऐसे कभी ऐसे मैचेस अगर आप हारते हो तो इवेंचुअली इट बिकम्स वेरी बिग. तो ऐसा ना हो. We chose them as favorites because of the strength of the team. But if Johnny Bairstow comes and plays like that, and Liam Livingstone plays like that, in the 1983 World Cup final, West Indies was also the favorite. Everybody picked West Indies, but we didn't complain when we won because that day our skills were better than them. It's a game of skill. So if Johnny Bairstow, Shikhar Dhawan, and Liam Livingstone come off in every game, they'll be number one in the league. They'll be number one in the league. That's how good they are. But for some reason, Shikhar has done the job. Johnny Bairstow was batting out of position. Liam Livingstone, they played him, they dropped him. Now, how much they wish they played him all through. Maybe they would have qualified by now. You cannot drop people like Liam Livingstone from Punjab Kings. You cannot drop Tim David from this Mumbai team. You cannot. You just cannot. Because when they play, they will win you 4-5 games out of the 8 or 9 you need to win. 4-5 ये अकेले जिता देंगे आपको, जैसे आज इन्होंने जिताया. बट जब नहीं जिताओगे, जब जो गेम नहीं जिताओगे, फिर से आप जिताए नहीं, बाहर बैठो तो बाहर से भी जिता पाओगे? नहीं जिता पाओगे. अगले गेम जो जिता सकते हो वो भी तो चांस गया. These sort of players you have to back them because they are game-changing players. They don't need help from anybody else. Shikhar needs help, Dhawan needs help, Warner needs help. These guys don't need help. They'll win them on their own. So that's the reason why these players have to be backed, because they're game-changing players. Prithvi Shaw, game-changing player. Yes, his consistency could be better. He's probably winning 3 or 4 games out of 14. He'll become 7 or 8. He'll be irreplaceable. He will go and bat. Others can bat at 6 runs and over and still go 190 and you win the game. That's the reason why these special players have to be dealt with
with a lot of care. Handle with care आता है ना, वो fragile वाला आता है एयरपोर्ट में, वो लगाना पड़ेगा इनको. जयदीप, ऋषि धवन के क्वेश्चन पे ही आऊंगी. अभी देवशी से पूछा था, अब आपके पास भी आते हैं. आपके व्यूज क्या हैं? ऋषि धवन को आपने बड़ा क्लोजली देखा है इस मुश्ताक अली में या फिर डोमेस्टिक में. इस साल उन्होंने बहुत अच्छा किया है, ना केवल एज अ प्लेयर बल्कि एज अ कैप्टन भी अपनी टीम को जिताया है. क्रूशियल कंट्रीब्यूशन किया है जिसकी वजह से उनको मौका मिला पंजाब की वजह से, और इस बार खेलने का भी मौका मिल रहा है. क्या डिफरेंट लग रहा है पहले ऋषि धवन में और इस ऋषि धवन में? Maturity and knowing what he can do, what he can't do. Before he was a young cricketer who thought he could do it all. But now he's matured. He's at the second half of his career. He knows what he can do. His skills are superb. He's become really smart in the head. उसको पता है बॉल से क्या कर सकता है. He cannot be Hardik Pandya. He cannot be Jasprit Bumrah. He definitely cannot be Umran Malik. So what can he do? He can become Rishi Dhawan. He can become another Harshal Patel. So if I know Rishi Dhawan and we work for the same company, so I've known him for a while, and I've seen his progress as a cricketer. So when I see him now, he's got the slower ball, he's got the back of the hand, just like Harshal. Harshal has been playing first-class cricket for more than 10 years. But he wasn't so good for the first 7 or 8 years because he didn't have the skills. But now he has the skills. And because he has the skills, that's the reason why it's a different Harshal Patel. He's going to play for India now. How many people after 10 years of first-class cricket play for India? Not too many. But that's how good he is. So Rishi Dhawan also, I think he played for India at trifle early. And right now, he's a lot better, I think, right? Because he's become very matured in the head. He knows what he can do. He knows how to play with the field as far as batting is concerned. With bowling also, exactly his range has become more under the gun. He can bowl those balls which are difficult to bowl. And he did it, in the Vijay Hazare which he won, when the bowling conditions were bowling favorable, he gave the balls to the other bowlers. When they were bowling second in Jaipur, he opened with the new ball in the power play, came and bowled at the end. So he did all the hard miles. So that gave him confidence. कि मैं अगर इस लेवल में कर सकता हूँ, अगर मैं दिनेश कार्तिक को विजय हजारे फाइनल में रोक सकता हूँ, yes, Dinesh did 100, but he still held his own. So if I can hold my own in front of Dinesh Karthik and Vijay Hazare, I'll be able to do it in IPL also when I bowl to Dinesh Karthik. And that's what's exactly happening. एक्सपीरियंस क्या क्या लेके आती है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है. देवशीष एक ऐसी टीम, एक्सपीरियंस एंड डेवलपमेंट, एज यू गो एक्सपीरियंस के साथ डेवलपमेंट भी होता है. You develop as a cricketer, as a person. Yes. देवशीष एक टीम जो 200 से ऊपर मारती है उसमें आपके जो बॉलर्स हैं स्पेशली हर्षल पटेल 4 विकेट लेते हैं, हसरंगा 4 ओवर 15 रन 2 विकेट. वो 2 स्पेल को छोड़ के बाकी बॉलर्स थोड़े से क्लूलेस नजर आए. हेजलवुड जिसे उम्मीद की जा रही थी कि वो विकेट्स दिलवाते भी हैं, कंसिस्टेंट भी रहते हैं, वहां पे उन्होंने सबसे एक्सपेंसिव स्पेल डाला है. वन ऑफ डे आपका हो सकता है, लेकिन जब मैच होता है ना, एक टीम जीतती है और एक टीम सीखती है. क्या सीख ली होगी यहाँ पे आरसीबी ने? देखिए, जैसे कि आपने कहा, सही कहा कि एनी प्लेयर कैन मे हैव अ वन बैड डे एट द ऑफिस. जैसे आज I want to also answer this after Devashish that. तो बट देन अगर बड़े मैच में, ऐसे इंपॉर्टेंट मैच में आपका दिन खराब जाता है तो इट हर्ट्स. और आज वही हुआ, क्योंकि देखिए जिस तरह से हर्षल पटेल ने लगा अच्छा बॉलिंग डाला, 4 विकेट लिया. हसरंगा हैज बीन अ रेवलेशन फॉर आरसीबी थ्रू आउट द सीजन फ्रॉम द फर्स्ट मैच. अगर आप किसी भी बॉलर को अगर हैंड पिक करेंगे इस आरसीबी साइड में एज अ बॉलर, तो दैट वुड बी हसरंगा. But then बाकी जो bowlers है, Sabaj Ahmed again, he has done well. He has shown promise towards the first half of the IPL, but suddenly आज भी उसने विकेट लिया. मगर जो होता है ना कि crunch moment पे you restrict the opponent. 4 ओवर में 40 रन is a bit too much. It's on a higher, I would say. तो वही आज देखने को मिला. एंड क्रेडिट शुड आल्सो गो टू द पंजाब किंग्स बैटर्स, starting Absolutely. from Bairstow. They took the attack. They were in a positive frame of mind. Never did they let that run rate to drop below 9. Constantly they were up the tempo. So I think 200 से ऊपर अगर आप बनाते हो तो 10 में से 9 बार तो आप you will put pressure on the team bat chasing. So आज वैसे ही I'm dying to answer this. Please, Jaydeep. Retain Yashwendra Chahal. और दोनों एंड से लेग स्पिनर.
मैं सुबह शुरू किया था 7 बजे और अभी आई रेस्ट माई केस. आप सोच सकते हो दोनों एक साथ डालते, एक 4-15 डाल रहे हैं. कैन यू इमेजिन? पर्पल उधर कैप से वो होल्डर डालता है इस तो टाइम पे हसरंगा, नंबर 2 पे है युजवेंद्र चहल. या वही मैं 23 बोल रहा हूँ. विकेट्स हो अगर ये गया दोनों उनका. एक साथ डालते, can you even imagine? I think RCB missed a trick. You can Hmm. never let a player like this go in one off year. Bhi nahi, off year maybe he was better than many. If you are better in your off year than most, then you're special. And I think they missed the second spinner. Shahbaz plays for Bengal. I know him in and out. He's a batter who bowls. He's very accurate with his bowling, but he's not Yajwendra Chahal. He's not. Hmm. If you're expecting 421 4 from Shahbaz every game, that's unfair. एक एक कहानी, एक कहावत होती है ना कि आप कहावत क्या है, एक मानते हैं लोग कि जॉयदीप ऑफ स्पिनर, दोनों 2 ऑफ स्पिनर खेल सकते हैं. कब वो चीज़ आएगी कि 2 लेग एक स्पिनर भी एक चीज खेल सकते एक हैं? चीज एक चीज में थोड़ा मैं आपको दोनों को एक बार विथ योर परमिशन, शायद आज वो काला बिल्ली दिखे ना आज ग्राउंड में, शायद दैट वाज अ बैड बैड ओमेन फॉर आरसीबी, क्योंकि वो पाप बैटिंग कर रहा था, वो काला बिल्ली आ गया साइड स्क्रीन का ऊपर. देवेशी तो सीरियसली. वो अपशकुन होता है ना, वही हुआ आज. लेकिन अब मुश्किल होने वाला है आरसीबी के लिए भी, और पंजाब किंग्स को तो सारे मैच यहाँ से जीतने ही जीतने हैं. आरसीबी के लिए भी यही कहानी है देवाशीष कि आपके पास अब जो मैच बचे हैं वो आप जीतिए. अभी तक तो ये कहानी थी कि आप अगर आज का मैच भी जीते हैं और आगे वाले मैच भी जीते हैं तो आप नंबर 1 और 2 की लड़ाई लड़ते हैं. आज वो केवल हारे नहीं है, आज नेट रन रेट में भी थोड़ा डेंट पड़ा है. माइनस माइनस पॉइंट हुँ, समथिंग हो गया उनका नेट रन रेट. हुँ. तो बिल्कुल. जैसे मैंने कहा, इट विल हर्ट देम, हुँ, इट विल हॉन्ट देम, क्योंकि अगर आरसीबी अगर क्वालिफाई नहीं करता है तो आज का ये पंजाब मैच इट विल हर्ट देम बिग टाइम, क्योंकि आज अगर वो जीत जाता तो दे वुड हैव बीन इन अ कंफर्ट जोन. हुँ, क्योंकि अभी वो नहीं रहेगा, क्योंकि जो बाकी का जो 2 टीम है जैसे दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स, दे विल बी आल्सो, दे विल हैव अ बिगर मोटिवेशन नाउ, क्योंकि अगर वो जीत सकता है तो 13 मैच में उनका भी 14 पॉइंट हो जाएगा. एंड वहां पे आरसीबी ने आज बड़ा मार्जिन से हार के देयर रन रेट हुँ, हैज आल्सो टेक अ बैटरिंग. तो माइनस हुँ. पॉइंट 323 समथिंग ये हो गया रन रेट. तो आई थिंक इट विल दिस लॉस विल हर्ट देम बिग टाइम. बिल्कुल. अब एंड उसमें लीग मैचेस में है, वो अभी तक हमें दूसरा क्वालीफायर मिला नहीं है. यही इस आईपीएल की खूबसूरती है कि एंड तक पता नहीं चलता कौन आएगा, कौन जाएगा. लेकिन अब हम चलते हैं कल की मैच की तरफ, जाते-जाते उसके बारे में बात कर लेते हैं. कल मैच है, पुणे में खेला जाएगा. आपको तो पता ही होगा, केकेआर के सुपर डुपर फैन हैं, तो केकेआर एक बार फिर सामना करेगी सनराइजर्स हैदराबाद का, जो 5 मैच लगातार जीतने के बाद 4 मैच हार चुकी है. सो दोनों ही ऐसी टीम भिड़ेगी जो एक डीरेल हो रखी है. क्लूलेस नज़र आई थी पिछले मैच में केकेआर. कहीं न कहीं अपनी खुद की प्रॉब्लम से जूझ रही है सनराइज़र्स. कैसा मैच एक्सपेक्ट करेंगे जॉयदीप? Yeah, this is a really important game, and also I think it won't be easy for either of the teams. KKR has had a tough season. There's a lot going on also beyond, and a lot of repair work going on with what has been said. Sunrisers Hyderabad started off like a train, but after that struggled. And we were talking about this even before the tournament that Sunrisers are not looking that strong, and this surprised all of us. हुँ, But I think their luck ran out, their form ran out. Key हुँ, injuries to players, the skipper not in form, everything has come together at the same time. Suddenly, Umran Malik is not looking that lethal anymore because of the change in the हुँ, wickets. His length is still that hit the deck, so which is not helping. Ball is sitting up. He needs to be at least a couple of yards further. I'm sure they'll stay. Everybody's talking to him, but it's easier said than done. हाथ से कैसे कब बॉल निकलेगा ये इतना इजी नहीं होता है कंट्रोल करना, स्पेशली व्हेन यू आर बॉलिंग एट 150 किलोमीटर. हमने कभी डाला ही नहीं उस पेस पे, तो पता ही नहीं. हुँ, बट जो थोड़ा बहुत डालो उसमें पता चलता है कि it's not easy to alter your length if you're not a finished product. He's definitely not. हुँ, So I think this is going to be a really unknown sort of a game. Both are going to go and give it their best, but you don't have a favorite over the other. I still feel KKR just on their strength, on their potential, on paper, look a stronger side to me than SRH. But again, it's about form. But I feel that हुँ, KKR, even if they play to 80% of their potential, they should go through. Because look at the match winners. Yes, they haven't worked. I know all that. All that has been said. हुँ, We are aware. But just looking at the team, I just feel KKR has the edge. And I'm saying this only from a cricketing point of view. जॉयदीप, योर देवाशीष, योर व्यूज़? Yeah, I
I would rather differ from with Joydipda. I think KK, the fact that there has been too many off the field controversies going around with the team selections and other issues, and also the injury to Pat Cummins have will definitely haunt them, because Pat Cummins last match may he bowled really well, and also Umesh Jadhav, the two key bowlers in their side, getting injured at a crucial juncture, क्योंकि इसी टाइम पे ये दोनों का रहना बहुत अहम होता, तो मगर द इंजरीज टू की bowlers did not do a world of good for them as far as KKR is concerned. But I would still feel कि देखिए दोनों साइड में ही ठीक है, आप सनराइजर्स ने 5 मैच लगातार जीता, 4 मैच फिर से हारा, तो they have both the teams have lacked consistency. एंड आई डोंट रेकन कि दोनों टीम का कोई चांसेस है, रियलिस्टिकली तो चांसेस है, ऑन पेपर तो चांसेस जरूर है, बट डेफिनेटली क्या होता है ना कि कुछ टीम को देखते ही आपको पता चलता है कि शायद ये टीम जा सकता है, बट एज फार एज केकेआर एंड सनराइजर्स आर कंसर्न, आई एम नॉट टू कॉन्फिडेंट अबाउट बोथ टीम्स मेकिंग इट टू द प्लेऑफ. सो मगर जैसे कि आपने प्रेडिक्शन के बारे में बताया, तो आई वुड फील कि सनराइजर्स हैदराबाद कैन विल बी द फेवरेट्स. सनराइजर्स हैदराबाद केकेआर के फैन बोल रहे हैं. जयदीप, आप केकेआर के साथ जा रहे हैं? No, every time he says against KKR wins. Last time also did. So I was hoping he goes with this. So ये उस तरीके से था कि सनराइजर्स को बैक करता हूँ, केकेआर को जिताता हूँ. वैसे फैन है ये. उल्टा बैक करो और टीम को जिताओ. केकेआर की जर्सी में दिखेंगे, कल नहीं दिखेंगे. Unfortunately, I don't have a jersey of KKR. पर्पल पहन लो, कलर पहन सकते हैं, जर्सी सबके होने की जरूरत नहीं होती. कल में पर्पल पहन के बैठेंगे. मत पहनिए. अभी जयदीप को राइट प्रूफ कर दिया. सनराइजर्स को राइट करके मना कर रहे हैं. मैंने जैसे ही बोला मैं पर्पल पहन के बैठेगा, मना कर रहे हैं. 40 ओवर के लिए ठीक है, ऑरेंज पहन लेगा. ऑरेंज पहन लेगा. जो भी पहनेंगे 20 ओवर नहीं, 40 ओवर के लिए. तो लास्ट मैच में गुजरात टाइटंस का जर्सी में 40 ओवर ही पहना था. और उसके पहले वाला, अच्छा, मुंबई इंडियंस का मैच में मैं ब्लू पहना था, मगर आपने ब्रेक में बोला कि आज पीला पहन लो, सेकंड इनिंग्स में पीला पहन लो. वो मेरे लिए था, ट्रिब्यूट टू सीएसके था वो. वो पीला तो अब तक नहीं छोड़े हो. मुझे वो लोग पसंद है जो येलो आसानी से छोड़ते नहीं है वैसे, बाय द वे. सो इट इज छोड़े नहीं इसलिए कल लॉन्ड्री में दे देना. No, I honestly feel that not just cricketing point of view. I feel that if I look at both the teams, I feel KKR has more firepower. It hasn't worked for them, but I feel like with the people that are there, I honestly feel that they are a better batting side and better bowling side, especially with the injuries. I know Umesh and Pat Cummins miss out, but I even feel that the youngsters that are there, the Mavis and all, I'm putting marginally KKR ahead. I'm obviously going with them, but this time my hand and my head and my heart are both going with KKR. And for Sunrisers to do well, please come on, pass on the information to Kane Williamson. Get down the order. You cannot bat at the top. जैसे कि कितने सारे एग्जांपल्स है इस आईपीएल में. बेयरस्टो है, और भी सारे एग्जांपल्स है कि केन विलियमसन एट द टॉप. आई थिंक सेंड राहुल त्रिपाठी. Hey, Virat Kohli hasn't gone down. Rohit Sharma hasn't gone down. Why will Kane Williamson go down? Huh? स्ट्राइक रेट देखिए, स्ट्राइक रेट देखिए. विराट कोहली नीचे गया है, रोहित शर्मा नीचे गया है. अब तो ये देखिए, ये तो सब चलता रहेगा. ये इंडिविजुअल सोच के ऊपर होता है. मयंक अग्रवाल नीचे गए हैं. No, I agree with Devash. उनका जो गेम है ना, नंबर 3 परफेक्ट है, कंट्रोल कर सकता है. परफेक्ट है. परफेक्ट नंबर 3 है. वो नंबर 3 खेलते थे इन द गोल्डन पीरियड ऑफ हैदराबाद. वो नंबर 3 में अपना काम करते थे. ऊपर डेविड वार्नर था, रिद्धिमान था, बेस्टो था, जो भी था, उनका गेम था 3 नंबर पे. अभी वो सोच रहे, अभी डेविड वार्नर चला कि मैं डेविड वार्नर हो जाऊंगा. तो ठीक है भैया, लगा लो, आप भी ट्राई कर लो. सोच बदलनी पड़ेगी. अपने पे इंडिविजुअल सोच पे होता है कि आपकी टीम को क्या जरूरत है, आप उसके हिसाब से करिए. और अगर आप फॉर्म से जूझ रहे हैं तो एक्सेप्ट इट. और वही एक जरिया होता है कि आप अपनी टीम को हार से निकाल सकते हैं. राहुल त्रिपाठी अच्छा कर रहे हैं, वो और बेटर कर सकते हैं अगर एज एन ओपनर आएंगे. ज्यादा बॉल फेस करने को मिलेगी. और जो जयदीप हमेशा कहते हैं ना, वो स्पाइक्स का मार्क पहला डालते हैं. सो कहीं ना कहीं मेंटल गेम खेलने को मिलेगा. लेकिन कल जो दोनों ऐसी टीमें जो फॉर्म से जूझ रही है, लेकिन अभी भी
कोई भी टीम किसी भी टीम का पार्टी स्पॉइलर बन सकती है। इम्पोर्टेंट True. ये गेम रहने वाला है ना केवल केकेआर के लिए, सनराइजर्स के लिए, बल्कि बाकी सारी टीमों के लिए भी। तो तब तक के लिए वेट करेंगे और कल मिलेंगे प्री मैच में शाम 7 बजे। जुड़ना हमसे भूलिएगा मत, और तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड गुड नाइट। थैंक यू सो मच जॉयदीप एंड Thank देवाशीष। you, Rimaji. थैंक यू Thank हिमाजी, you. गुड Thank नाइट। you, Devashish. थैंक यू जॉयदीप दा, गुड नाइट।